Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss Maharashtra State Board 9th Standard Science and Technology Part 1, Chapter 5 Acids, Bases and Salt. This is the part 2nd of the chapter. So let's begin with the lecture. In the previous lecture, we had discussed about the ionic compounds. So ionic compounds are those compounds in which ionic bond is present over there between their atoms. So let's discuss the dissociation of ionic compound. First of all, what is the dissociation? So dissociation is the process of separation of atoms or molecules. So dissociation is the process of separation of atoms or molecule of particular compound. Means when ionic compounds are dissolved in the water, their atoms are get separated from each other. How it is separated? Let's have a look at the dissociation of ionic compounds. When we discuss the dissociation of ionic compounds, we have to remember that the ionic compounds are those compounds which having the positive and negative ions, and there is a electrostatic force of attraction between that positive and negative ion. Let's take the example of NaCl. Further we will discuss the dissociation of NaCl. So dissociation of ionic compounds, when the ionic compounds are dissolved into the water, their ions get separated. Means the positive, that is cation, and negative, that is anion, those are separated from each other. How they are separated? By the reducing of the electrostatic force of attraction between them. Means the ionic bond is present over there, that ionic bond is called as electrostatic force of attraction. It is nothing but a electrostatic force of attraction, and that force of attraction get reduced when the ionic compounds are dissolved into the water, and all the atoms and the ions are get dispersed in the water. So this is the dissociation of ionic compound. Further, let's have a look at the dissociation of sodium chloride in water. As we know, the sodium chloride is an ionic compound. It is an ionic compound. When the solid sodium chloride is added into the water, look at the picture inside. So when this is the solid sodium chloride, when added into the water, this sodium and chlorine ions get separate out, and it forms the aqueous solution of sodium chloride. So look at the inner side of the aqueous solution of sodium chloride. In this, sodium, that is Na plus, which is cation, and Cl minus, which is nothing but a anion. So these cations and anions are get separated from each other by the insertion of water molecules. Means इनके बीच में जो है water molecules क्या होते हैं, अंदर आ जाते हैं. तो इनके बीच में का force of attraction reduce होगा, और these ions get separated from each other, and this is how the aqueous solution of sodium chloride form. Let's have a look at what we got from this sodium chloride. When added into the water, dissociation process takes place. This dissociation results in the formation of Na plus, that is cation, and Cl minus, that is anion. So this is the dissociation of sodium chloride in water. Further, in our daily life, we are using lots of acidic and basic substances. In the previous lecture, as we discussed about the daily using substance which having the acids and bases, and here the few examples are given here. Vinegar, that is generally we are calling it sirka, which is present in our kitchen. So vinegar is nothing but acetic acid, so it is a acidic in nature. Further, the soaps, shampoos we are using in the bathing, so that is nothing but the basic substances. So soaps and the shampoos we are using is basic in nature. So we, in the previous lecture we had seen that the practically how we can decide the particular substance is acidic or basic in nature. In that lecture we had seen the litmus test to recognize the substance which is acidic or basic in nature. So today we will discuss few theories which describe the acids and bases. Means practically
how to decide the substance is acidic or basic, we had already discussed that. Today we will discuss the theories behind it. So first of all, let's have an introduction to the scientist who had given the theory of acids and bases, whose name is Arrhenius. Generally his name is Arrhenius. So this is the picture of Arrhenius. Let's have a small introduction of the scientist. His name was Svante August Arrhenius in 1859 to 1927. Further, he was a Swedish scientist. He received the Nobel Prize for Chemistry in 1903 and he became the first Swedish Nobel laureate. Means he is a Swedish scientist, first Swedish scientist who got the Nobel Prize in the chemistry field. Further, in 1905 he became a director of Nobel Institute where he remained until his death. Let's have discuss about his work. He put forth the theory of acids and bases in 1887. 1887 में उसने एक theory दिया था जिसको कहते हैं Arrhenius theory of acids and bases. Let's have a look at his work. Arrhenius theory of acids and bases. So generally we had discussed about, he put forth the theory in 1887 about the acids and bases. This theory gives the definition of acids and bases. अब इस theory से हमको क्या मिलेगा? Definition of acids and bases. जैसे कि previous lecture में हमने practically acid कौन सा और base कौन सा है ये जानने के लिए litmus test का इस्तेमाल किया था. इस lecture में हम उसके पीछे के behind the theory, उसके पीछे जो theory है वो कैसे apply हुई वो देखेंगे. Okay? So further, Arrhenius theory of acids. अब Arrhenius के हिसाब से acid कौन सा है? So according to Arrhenius, an acid is a substance which on dissolving in water gives rise to H plus ion as the only cation. According to Arrhenius means acid वो substance होगा जब उसको हम water में dissolve करेंगे तो वो cation देगा, वो भी कौन सा? सिर्फ H plus. अदर दैन H प्लस अगर कटायन देता है तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी वो एसिड नहीं होगा. लेकिन अगर वो H प्लस आयन देता है हमको एज ए कटायन, सिर्फ H प्लस आयन एज ए कटायन अगर हमको देता है तो दैट वुड बी कॉल्ड एज एसिड अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी. ओके, फर्दर टेक द एग्जाम्पल. हियर इज द लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल. हाइड्रोक्लोरिक एसिड that is HCl, sulfuric acid that is H2SO4 and carbonic acid that is H2CO3. Look at the common thing in all the examples. Every example having the hydrogen present over there. Here HCl, here are two hydrogens, here are also two hydrogens. Means those acids which are Arrhenius acids having the hydrogen over there. मीन्स उसमें क्या होगा? कॉमन थिंग क्या होगी? हाइड्रोजन वहाँ पर प्रेजेंट होगा. फर्दर लेट्स हैव अ लुक एट द डिसोसिएशन ऑफ HCl इन वाटर. व्हेन HCl that is hydrochloric acid is added into the water, dissociation takes place. Why dissociation takes place? Because it is ionic in nature. Further, this H plus and this Cl minus ions get separated. Remember this Cl minus ion is a anion here and we are discussing about the cation. So after dissociation HCl gives us a H plus as a cation. That is why look at here, acid is a substance which gives H plus ion as a cation only. So HCl is giving H plus as a cation. So according to the Arrhenius theory of acids, it is an hydrochloric acid. Means HCl is a acid according to the Arrhenius theory of acids. Let's have a look at how it looks like when the HCl is dissolved in the water. Here is the HCl. When dissolved in the water,
the separation takes place, H plus ions and Cl minus ions get separate out. So this is the picture representation of dissociation of HCl. Okay, so it is the dissociation of HCl. Let's have a second example, dissociation of H2SO4, that is sulfuric acid. When sulfuric acid is added into the water, it is also get dissociated. So let's have a look at the dissociation. Sulfuric acid having two hydrogens, when added into the water, it dissociates and gives us a H plus as a cation. H plus as a cation. So further means this acid, that is H2SO4, dissociates twice. मीन्स ये क्या है, दो मरतबा क्या होता है, डिसोसिएशन होता है इसका. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला H प्लस आयन हमको मिलेगा एज ए कटायन, देन HSO4 माइनस से फिर एक डिसोसिएशन होगा, देन फिर हमको क्या मिलेगा, H प्लस आयन. ओके, सो दिस इज द डिसोसिएशन ऑफ H2SO4 अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड. एसिड वो होगा जो हमको H प्लस आयन एज ए कटायन देगा, तो H2SO4 ने हमको H प्लस आयन एज ए कटायन दिया है. सो अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स, H2SO4 that is sulfuric acid is an acidic substance. Have a look at the another example, that is dissociation of HBr, that is hydrogen bromide, and H2CO3, that is carbonic acid. Have a look at the dissociation. Dissociation of HBr. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि HBr में हाइड्रोजन प्रेजेंट है. It means that when it is added into the water, dissociation. Same scenario is here, that is H plus emerge as a cation, and Br minus as an anion. So HBr is giving us a H plus as a cation, so according to Arrhenius, it is an acid. Further, dissociation of carbonic acid. Carbonic acid having two hydrogens over there, when it is added into the water, it gives us a H plus ion as a cation and HCO3 minus as a anion. So it is giving us a H plus ion as a cation, so according to Arrhenius, it is an acid. So we have taken lots of examples here. After the dissociation, acids are the substance which are giving us a H plus as a cation. So things to be remembered here, according to Arrhenius, acid is an substance which is added into the water. When dissolved into the water, it gives H plus as a cation only. Okay, so this is the acid according to the Arrhenius, and the theory is called as Arrhenius theory of acid. Further, in your textbook there are few questions are there. First question is, what are the names of the following compounds? Means you have to name this compound, NH3, Na2O and CaO. So you have to write the names of these compounds. Second question, when these compounds are mixed with water, they combine with water. मतलब हम जब ये कंपाउंड्स को वाटर में ऐड करेंगे तो वो वाटर से कंबाइन होंगे. सो वहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो आपको कंप्लीट करना है. आई विल गिव दैट एज ए होमवर्क. ओके, सो वो किस तरीके के कंपाउंड फॉर्म करते हैं आफ्टर द कॉम्बिनेशन विद द वाटर, वो आपको लिखना है. फर्दर, इनटू विच टाइप विल यू क्लासीफाई द अबाउ कंपाउंड्स, एसिड, बेस और सॉल्ट. तो ये तीन कंपाउंड को कैटेगराइज करना है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में. सो आपको एज ए ये होमवर्क मिलेगा. फर्दर, Arrhenius theory of bases. According to Arrhenius, which compounds are bases? Have a look at the definition. According to the Arrhenius theory of bases, a base is the substance which on dissolving in water gives rise to the OH minus ion as the only anion. It means बेस वो सब्सटेंस होगा जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे
तो वो OH माइनस आयन एज ए अनायन देगा। मतलब जितने भी सब्सटेंस OH माइनस आयन एज ए अनायन हमको आफ्टर डिजॉल्विंग इन द वाटर देंगे तो वो क्या होगा, बेस होगा। सिंपल है, बेस वो सब्सटेंस होगा जिसको हम डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो हमको अनायन कौन सा मिलेगा, OH माइनस आयन। तो ये इसके अरहेनियस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ अरहेनियस थियरी ऑफ बेसिस OH माइनस आयंस जो भी देगा वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है। फर्दर लेट्स हैव एग्जांपल। अब यहाँ पर कॉमन थिंग क्या है, यहाँ पर भी OH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH में OH है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी OH है। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर OH होता है वो OH माइनस आयन हमको दे सकते हैं, पॉसिबल है। लेट्स हैव एग्जांपल डिसोसिएशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉलिड स्टेट एडेड इनटू द वाटर, जब उसको वाटर में ऐड करेंगे तो डिसोसिएशन प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा, डिसोसिएशन। फर्दर आफ्टर डिसोसिएशन Na प्लस एज ए कटायन एंड OH माइनस एज ए अनायन। अब यहाँ पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना है OH माइनस आयंस पे, क्योंकि फर्दर डेफिनेशन क्या कहती है कि बेस वो सब्सटेंस होगा जो OH माइनस आयन एज ए अनायन हमको प्रोड्यूस करके देगा वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पर OH माइनस आयन क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द अरहेनियस थ्योरी ऑफ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेसिक इन नेचर। फर्दर let's have another example, dissociation of calcium hydroxide and potassium hydroxide. Have a look at the dissociation process. Dissociation of calcium hydroxide. Calcium hydroxide contains two hydroxide ions, means यहाँ पर दो OH ions हमको मिल सकते हैं पॉसिबिलिटी से। When dissolved into the water, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे डिसोसिएशन होगा। आफ्टर डिसोसिएशन Ca प्लस सेपरेट आउट हो जाएगा, बट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी OH माइनस आयंस। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आफ्टर डिजॉल्विंग it is giving us a OH minus ion. So according to the Arrhenius theory of bases, calcium hydroxide is a basic in nature. Further, dissociation of potassium hydroxide. Same thing applies to the potassium hydroxide. It contains OH ion. So when added into the water, dissociation takes place. Then it gives rise to K plus as a cation, while we have to concentrate on the OH minus ion. So it is giving us a OH minus ions. So according to the Arrhenius theory of bases, potassium hydroxide is a base. So remember these things. Remember this thing here. That is, a base is a substance when dissolved in the water, it gives OH minus ion as a anion. So according to the Arrhenius, that type of compounds are nothing but a bases. Further, let's have a classification of acids. The acids are further classified as a strong acid and weak acids. So which are the strong acids and which are the weak acids? We will discuss here. First of all, let's have a look at the pictures. Look at here, all the Cl minus ions and the H3O plus, that is, here is the H plus ion. H plus ions are get separated from each other, completely separated from each other. So in the strong acid, this, that is the positive and negative ions are completely separate out from each other. Means all the positive and negative ions present over there are get separated from each other, which is called as strong acid. While in the weak acid, here we are adding HF, that is hydrogen fluoride. It is an acid. When this acid is added into the water, it does not completely separate, completely dissociate. So dissociation, here look at here, few atoms are get separated, मतलब इसके कुछ आयंस क्या होंगे, सेपरेट होंगे, लेकिन कुछ आयंस एज इट इज रहेंगे. मीन्स इट इज द इनकम्प्लीट dissociation takes place into the water.
So that is why it is referred as a weak acid. Further, let's have a look at the classification of acids. So acids are classified into two categories: strong acid and weak acid. First of all, let's have a look at what are the strong acid. So here is the definition of strong acid: the acid which is completely dissociate when dissolved in water is called strong acid. मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होगा जब वाटर में हम उसको डिज़ोल्व करेंगे तो वो उसका डिसोसिएशन कंप्लीट होगा, यानी कि अगर 10 मॉलिक्यूल ऑफ HCl प्रेजेंट है वहाँ पर, तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl पूरे कम्प्लीटली क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हो गए. H प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल का H प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा, यानी कि कम्प्लीटली H प्लस सेपरेट आउट हो जाएंगे और Cl माइनस सेपरेट आउट हो जाएंगे. तो उस एसिड को हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है वाटर में डालने के बाद. ओके फिर उसके बाद क्या होगा, द रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन मेनली कंटेन H प्लस आयन एंड द कंसर्न एसिडिक रेडिकल. अब देखो इसमें क्या होगा कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा आफ्टर एडिशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू द वाटर, तो वो क्या होगा, एक्वस इन नेचर होगा, क्योंकि हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, इसके लिए उसको एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे. सो उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, मेनली कंटेन H प्लस आयन, मतलब H प्लस आयन कम्प्लीटली उसमें से क्या होंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे. एंड द कंसर्न एसिडिक रेडिकल, मतलब उसमें ऐसा कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं रहेगा जो एक दूसरे से जुड़ा हो, लाइक HCl एक दूसरे से अगर जॉइंट है तो वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, वो कम्प्लीटली क्या होगा, डिसोसिएट होगा. H अलग होगा और H प्लस अलग होगा और Cl माइनस सेपरेट होगा. तो एसिडिक रेडिकल किसको कहते हैं हम, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और H प्लस क्या है यहाँ पर, बेसिक रेडिकल है. सो that acid is called as strong acid. So here is the few examples of strong acid. The strong acids are hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid, perchloric acid and chloric acid. So these are the 7 acids which are known as a strong acid because they completely dissociate when dissolved in the water. So this is all about the strong acid. Have a look at the weak acid. The acid which is not completely dissociate when dissolved in water is called as weak acid. Means इसके जो आयंस होंगे वो completely dissociate नहीं होंगे, कुछ dissociate हो जाएंगे, कुछ dissociate नहीं होंगे. So that acid is called as weak acid. ऐसा acid जो completely dissociate नहीं होता water में. अब इसका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा, रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स H प्लस आयन एंड द कंसर्न एसिडिक रेडिकल इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन. लुक एट हियर. अब H प्लस आयन क्या होंगे, कम प्रोड्यूस होंगे क्योंकि सेपरेशन नहीं हो रहा है ना, तो H प्लस आयन भी कम प्रोड्यूस हुए और एसिडिक रेडिकल भी कम प्रोड्यूस हुए. तो यहाँ पर क्या होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में H प्लस आयन और एसिडिक रेडिकल, यानी कि जो भी वो नेगेटिव चार्ज वाला जो भी आयन होगा वो क्या होगा, स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे. स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या थे, वो लार्ज प्रोपोर्शन में थे. कम्प्लीटली डिसोसिएट मतलब H प्लस कम्प्लीट अलग होगा और एसिडिक रेडिकल यहाँ पर कम्प्लीटली अलग था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एसिडिक रेडिकल भी कम है और H प्लस आयन भी क्या है, स्मॉल प्रोपोर्शन में. सो इट कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड, मतलब जो पर्टिकुलर एसिड होगा उसके अनडिसोसिएटेड मतलब जो सेपरेट नहीं हुए ऐसे मॉलिक्यूल्स लार्ज प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे. किस में, वीक एसिड में. here are the few examples of the weak acid, that is carbonic acid, H2CO3, acetic acid and the formic acid. So these are the few examples of the weak acid. So remember one thing, strong acid completely dissociate into the water and weak acid is not completely dissociate into the water. स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा, मेनली उसके एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस और कंसर्न एसिडिक रेडिकल रहेगा, वाइल वीक एसिड में रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस और कंसर्न एसिडिक रेडिकल का स्मॉल प्रोपोर्शन होगा, वाइल लार्ज प्रोपोर्शन जो होगा वो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड्स रहेगा. ओके, अंडरस्टैंड. सो
Let's have a look at the dissociation of strong and weak acid. We have seen their definitions also. First of all, dissociation of strong acid. How they are dissociated. Here is the example HNO3, that is nitric acid. When added into the water, dissociation takes place. It gives H plus as a cation. So it is an acid according to the Arrhenius theory of acids. So here is the separation. Means here complete dissociation of the acid takes place. Means all the ions are get separated from each other. Second acid, that is hydroiodic acid, that is HI. When added into the water, it completely dissociates into the H plus and I minus ions. This is a HClO4. When added into the water, it also gets separated from as a H plus as a cation and ClO4 minus as a anion. The last example, HClO3. When added into the water, complete dissociation takes place. H plus is get separated from the ClO3 minus. So look at here, all the ions of the particular acid is completely dissociated from each other. So this is the scenario of strong acid. Have a look at the weak acid, how they are dissociated. So weak acids, will take few examples like acetic acid. When added into the water, it is get separated as H plus and CH3COO minus. But what happens here? Why it is a weak acid? Because we'll discuss this in the last one. Okay. After that, this is the formic acid. When added into the water, H plus gets separated and HCOO minus ion also get separated from each other. These two separation are looking familiar, same to same, but let's have a reason of weak acid. So why acetic acid is a weak acid? Because when it is added into the water, it reacts with the water in a reversible fashion to form hydronium ion and acetate ions. What happens here actually, this acetate ion, इस आयन को क्या कहते हैं, acetate ion. This acetate ion reversibly react with the water and abstract the hydrogen from water. So यहाँ पर क्या होगा, H plus वापस से इसके पास चला जाएगा, तो ये आयन वापस से फिर से क्या फॉर्म हो जाएगा, रिवर्सिबल फैशन में एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा. तो ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होंगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल फैशन में क्या कर रहा है, वापस से ये H एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड. तो ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे उसके अंदर, एसिटिक एसिड के होंगे, तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता ही नहीं है. इसके लिए वो क्या है, वीक एसिड है. सिमिलर सिचुएशन फॉर द फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड से हमको जो ये आयन मिला है, ये आयन वापस से क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो पर्टिकुलरली वो क्या फॉर्म कर लेगा, फॉर्मिक एसिड अगेन. मीन्स complete dissociation of these two acid does not possible over there. That is why they are listed as a weak acid. So remember these things. Further, let's have a look at the classification of strong and weak base. Have a look at the pictures. Strong base, that is sodium hydroxide, is the strong base. When added into the water, have a look at this. Sodium, that is Na plus ion and OH minus ions are away from each other, they are get separated. Have a look at this. Every molecule of the sodium hydroxide is separated, means it is dissociated completely here. Okay, so this is a strong base. Why? Their ions are completely separated when added into the water. Further, a weak base, have a look at the NH3, that is ammonia. When added into the water, dissolved into the water, it does not get completely dissociated, means complete dissociation does not take place here. That is why it is listed as a weak base. Further, let's discuss the classification of bases.
bases are classified into two categories, that is strong base and weak base. Have a look at the strong base first. According to the Arrhenius theory, we know that base is the substance which gives OH minus as ion as a anion. So which one is a strong base? The base which is completely dissociate when dissolved in the water is called strong base. ऐसा बेस जो completely dissociate होगा, मीन्स जिसके आयंस completely एक दूसरे से सेपरेट होंगे आफ्टर डिजॉल्व इन दी वाटर, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा. अब रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स मेनली OH माइनस एंड द बेसिक रेडिकल. ओके, OH माइनस आयन क्या है यहाँ पर? एसिडिक रेडिकल, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? एसिडिक रेडिकल होता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन जो रहेगा बेस का, उसमें मैक्सिमम अमाउंट में OH माइनस आयंस और कंसर्न बेसिक रेडिकल होंगे, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली क्या है, वो डिसोसिएट हो रहा है. सो फ्यू strong bases are listed over here: sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide and magnesium hydroxide. Look at the common thing, all having the OH ions here. सबके पास क्या है यहाँ पर? OH है. सो ये completely dissociate होते हैं वाटर में. सो इसी के लिए these are the listed as a strong base. Have a look at the weak bases. The base which is not completely dissociate when dissolved in the water. ऐसे बेसेस जो completely dissociate नहीं होते वाटर में, उनको हम weak base कहते हैं. So resulting aqueous solution contain a small proportion. अब देखो यहाँ पर large proportion में, ये completely dissociation मतलब इसमें OH माइनस आयन ही थे और बेसिक रेडिकल था. यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल प्रोपोर्शन में OH माइनस आयन हो गए और उसका जो बेसिक रेडिकल होगा वो भी स्मॉल प्रोपोर्शन में होगा. लेकिन लार्ज प्रोपोर्शन में क्या होगा? अनडिसोसिएटेड मतलब अनसेपरेटेड मॉलिक्यूल ऑफ द बेस. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं हुए वो लार्ज प्रोपोर्शन में रहेंगे, उस बेस को हम क्या कहेंगे? वीक बेस. सो वीक बेसेस आर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड अमोनिया दैट इज NH3. सो रिमेंबर दिस थिंग, strong base is completely dissociate in water, while the weak base does not completely dissociate into the water. Resulting aqueous solution of strong base having the OH minus and concerned basic radical only, while the resulting aqueous solution of the weak base having small proportion of OH minus and the concerned basic radical and large proportion of undissociated molecules. Remember this thing. Further, what are alkali? Alkalis are bases. They are generally bases. So कौन से bases को alkali कहेंगे? Let's have a look at this. Alkali, the bases which are highly soluble in water are called as alkali. ऐसे bases, अब यहाँ पर dissociation नहीं है, यहाँ पर वो बेस अल्कली होगा जो कम्प्लीटली सोल्यूबल होगा वाटर में. मतलब क्या होगा? अगर हम सॉलिड फॉर्म में किसी बेस को वाटर में ऐड करते हैं और वो कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाता है ना, कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्कली. द बेसेस विच आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज अल्कली. अब इसमें भी दो कैटेगरीज है, स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड वीक अल्कली. सो स्ट्रॉन्ग अल्कली बेसेस विच आर कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर एंड गिव्स OH माइनस आयंस. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना. अल्कली किसको कहेंगे? ऐसे बेसेस जो वाटर में हाईली सोल्यूबल है, मतलब कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं. सोल्यूबल और डिसोसिएट एक डिफरेंट चीज़ है. ठीक है, तो सोल्यूबल मतलब वो कम्प्लीटली उसके अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं. ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? अल्कली. अब स्ट्रॉन्ग अल्कली कौन सा होगा? ऐसे बेसेस जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं वाटर में जाने के बाद कम्प्लीटली डिसोसिएट मतलब उनके आयंस क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे एंड गिव्स OH माइनस आयंस. लाइक फॉर टेक एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग अल्कली की हुए, जब इसको हम वाटर में ऐड करेंगे, सबसे पहले तो ये सोल्यूबल है, कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर. That is why it is called as alkali also.
वाइल यहाँ पर Na प्लस और OH माइनस आयन क्या होंगे, कम्प्लीटली डिसोसिएट होंगे. दैट इज वाई इट इज लिस्टेड एज ए एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली. अनदर एग्जाम्पल इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इट इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू दी वाटर. ये सोल्यूबल भी होगा और कम्प्लीटली डिसोसिएट भी होगा, इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग अल्कली. अब अ लुक एट द वीक अल्कलीज. Weak alkalis are those bases which are not completely dissociate in water to give OH minus ion. मतलब वीक बेसिस जो भी वीक अल्कली वो होंगे ऐसे बेसिस जिनको हम वाटर में जब ऐड करेंगे वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे. रिमेंबर वन थिंग, डिसोसिएट नहीं होंगे कम्प्लीटली, लेकिन सोल्यूबल कम्प्लीटली होंगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, अल्कली. तो इसके लिए कम्प्लीटली सोल्यूबल तो है लेकिन आयन सेपरेशन कंप्लीट नहीं होगा एंड OH माइनस आयंस हमको क्या होंगे, कम मिलेंगे. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज वीक अल्कली. रिमेंबर द एग्जाम्पल NH4OH and NH3. These are the two example of the weak alkali. Remember the difference between the bases and alkali. अल्कली सारे बेसिस ही होते हैं, लेकिन ऐसे बेसिस जो कम्प्लीटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में उनको अल्कली कहा जाता है. एंड दे आर कैटेगराइज इनटू दी two forms, that is strong and weak alkali. Remember this point. Further, let's have a classification of acids and bases on the basis of acidity and basicity. Acidity and basicity के basis पे classification of acids and bases. First of all, basicity of acid क्या होता है. Let's have a look at the basicity of acids. अब ये किस पे डिपेंड करता हो, बेसिक रेडिकल्स. जैसे कि हम जनरली जानते हैं कि पॉजिटिव रेडिकल्स जितने भी होंगे, जो जैसे कि H प्लस हो गया. H प्लस क्या है हमारा, हमने लास्ट लेक्चर में एसिडिक और बेसिक रेडिकल ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. तो अब यहाँ पर H प्लस क्या है, बेसिक रेडिकल है. दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट बेसिसिटी ऑफ एसिड. एसिड की बेसिसिटी होती है और बेसिस की एसिडिटी होती है. रिमेंबर टू. सो हियर बेसिसिटी ऑफ एसिड किसको कहेंगे, द नंबर ऑफ H प्लस आयंस ऑब्टेनेबल बाय द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी. मतलब द नंबर ऑफ H प्लस आयंस ऑब्टेनेबल, जैसे कि सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल HCl. अगर HCl का एक मॉलिक्यूल हमने लिया तो HCl से हमको कितने हाइड्रोजन मिल सकते हैं, ओनली वन हाइड्रोजन, दैट इज़ वन H प्लस आयन. सो जितने H प्लस आयन ऑब्टेनेबल रहेंगे एक मॉलिक्यूल से, मतलब वो मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा और उससे हमको कितने H प्लस आयन मिल सकते हैं, दैट इज़ द एसिड, दैट इज़ द बेसिसिटी ऑफ एसिड. मतलब जितने H प्लस आयन मिलेंगे वो उसकी क्या होगी, बेसिसिटी इंक्रीज होंगी. अगर H प्लस रहेगा एक तो उसकी बेसिसिटी 1 रहेगी, अगर 2 रहेगा तो 2 हो जाएगी, और 3 H प्लस आयन मिलेगा तो 3 हो जाएगी. On the basis of basicity, acids are classified into the three types. अब देखो यहाँ पर एसिड्स क्लासीफाई हो रहे 3 टाइप्स में, दैट इज़ मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक. रिमेंबर दिस थिंग, मोनोबेसिक एसिड्स आर दोज एसिड्स जिसके एक मॉलिक्यूल से हमको एक ही H प्लस आयन मिलता है. ठीक है, एक ही H प्लस आयन मिलता है. डाइबेसिक से 2 H प्लस आयन मिलेंगे, ट्राइबेसिक से 3 H प्लस आयन मिलेंगे. सो रिमेंबर दिस थिंग्स. Basicity of acids. Acids are classified on the basicity, on the basis of basicity of the acid, that is monobasic, dibasic and tribasic. Have a look at the acidity of bases. Acidity of bases. The number of OH minus ions obtainable by the dissociation of one molecule of a base is called its acidity. मतलब अगर एक मॉलिक्यूल किसी बेस का डिसोसिएट होता है और उससे जितने नंबर ऑफ OH माइनस आयंस मिलेंगे उतनी उसकी उस बेस की एसिडिटी होगी. ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, बेसेस आर क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स, दैट इज मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड ट्राई एसिडिक बेसिस. मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3. So, have a look at the types of acids and types of bases on the basis of acidity and basicity. So,
On the basicity of acid, acids are classified into the three groups, that is monobasic acid, dibasic acid and tribasic acid. Further, monobasic acids are those acids, the acid which can produce only one H plus ion. मोनोबेसिक एसिड्स वो होंगे जो एक H प्लस आयन क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम मोनोबेसिक एसिड कहेंगे. हैव अ लुक एट द एग्जांपल. एसिड के मॉलिक्यूलर फार्मूले को देख करके हम पहचान सकते हैं कि पर्टिकुलर एसिड इज अ मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक. सो लुक एट हियर इन द HCl only produce one H plus ion here, while in the HNO3 it will also produce only one H plus ion, while into the acetic acid it will only produce one H plus ion. That is why these are the monobasic acids. तो monobasic acid वो acid होगा जिसका molecule dissociate होने के बाद एक H plus ion produce करता है. Dibasic acid, the acid which can produce only two H plus ions. ऐसे acids जो 2H plus ion produce कर सकते हैं. First of all, have an example, sulfuric acid, that is H2SO4 having two hydrogens, so it is a dibasic acid. Carbonic acid having two hydrogens, that is why it is a dibasic acid. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमको पता चल जाता है कि वो डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है या मोनोबेसिक है. Tribasic acids which the acid which can produce 3H plus ion. Have a look at here, H3BO3 or H3PO4. Both are acids having 3 hydrogen here, having 3 hydrogen here. So both can produce 3H plus ions. So that is why they are classified as a tribasic acid. Monobasic acid में 1H plus ion produce होगा, डायबेसिक में 2 प्रोड्यूस हो गए और ट्राइबेसिक में 3 प्रोड्यूस हो गए. While on the other hand, types of the bases on the basis of acidity of bases. So bases are classified as monoacidic, diacidic and triacidic bases. Further, have a look at the monoacidic base, the base which can produce only one OH minus ion. Have a look at here. Example, sodium hydroxide. Sodium hydroxide can produce only one OH minus ion here. So that is why it is a monoacidic base. Potassium hydroxide which can only produce one OH minus ions, that is why it is a monoacidic base. Ammonium hydroxide which can only produce one OH minus ion, that is why it is a monoacidic base. While the diacidic base, the base which can produce two OH minus ions. Have a look at here. We can here calcium hydroxide. In the molecular formula of calcium hydroxide, here two OH ions are present over there, so it can produce two OH ions. That is why it is categorized into the diacidic base. While barium hydroxide having two OH ions, that is also called as diacidic base. In the triacidic base, the base which can produce only 3 OH minus ions. So aluminium hydroxide and iron hydroxide can be classified as a triacidic base because there is a 3 OH minus ions and here it can produce 3 OH minus ions. So that is why they are classified as a triacidic base. So remember, the acids are monobasic, dibasic and tribasic, while bases are monoacidic, diacidic and triacidic. Okay, so this is the classification of acids. And further, in your textbook, one of the blank table is given over there. We have to fill that on the basis of basicity and acidity. So here is the table. ये टेबल टेक्स्ट बुक में भी दिया है, बट दीज आर दी फ्यू ब्लैंक स्पेसेस ओवर देयर. यहाँ पर मैंने उसको फिल किया हूँ, लेकिन वो टेक्स्ट बुक में क्या है, ब्लैंक है. सो बेसिसिटी एंड एसिडिटी. एसिड, नंबर ऑफ H प्लस ऑब्टेन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल से जितने H प्लस हमको ऑब्टेन होंगे, दैट इज़ द बेसिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड.
Have a look at this HCl. HCl can give us a 1H plus ion only. So that is its basicity is 1. So it is nothing but a monobasic acid. HNO3 can produce only 1H plus ion. So it will be a monobasic acid. While H2SO4 can produce 2H plus ion. So it is a dibasic. H2CO3 is also dibasic. H3BO3 can produce 3H plus ions, that is why it is a tribasic acid. H3PO4 can produce 3 ions, 3H plus ions, so that is why it is a tribasic. And acetic acid can produce only 1H plus ion, that is why it is a monobasic acid. So monobasic acids can produce only 1H plus ion. Further, bases, number of OH minus ions obtainable from one molecule of a base. So here sodium hydroxide, one molecule of sodium hydroxide can produce only one OH minus ion, that is why it is a monoacidic base. Potassium hydroxide can produce only one OH minus ion, it is also a monoacidic base. While calcium hydroxide can produce 2 OH minus ions, so it is a diacidic base. Barium hydroxide is also a diacidic base, while aluminium hydroxide and ferrous hydroxide both are triacidic bases because they can produce 3 OH minus ions. And the NH4OH, that is ammonium hydroxide, can produce only one OH minus ion, that is why it is a monoacidic base. So this is the classification of acids and bases on the basis of basicity and acidity. Remember this classification. Further, move to the next point, that is concentration of acids and bases. So before going to discuss about the concentration, few things to be known to us. First of all, solution. What is the solution? In the 8th standard you had studied about the solution. So here is the definition of solution. A homogeneous mixture of two or more substances. Solution is nothing but a homogeneous mixture. There are two types of the mixtures, homogeneous and heterogeneous. So homogeneous mixture is of two or more substance is called as solution. Okay. So heterogeneous means if we put a oil into the water, so oil will float on the surface of the water. So that solution is nothing but a heterogeneous solution. While if we add a sodium chloride into the water, it completely dissolves into water and form a homogeneous mixture, that is called a solution. So solution generally consists of solute and solvent. Solute and solvent. First of all, solute. The solute is the substance that is dissolved in the solvent. Solute वो substance होता है जो minimum amount में होता है, solvent से कम amount में रहेगा और dissolve होगा किसमें, solvent में. While the solvent, the substance in which solute is dissolved. If we take the example of addition of sodium chloride into the water, अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड स्टेट में है हमारे पास, वो क्या होगा, हमारा सोल्यूट होगा. वाइल द वाटर इज अ सॉल्वेंट ओवर देयर, बिकॉज सोल्यूट किस में, NaCl किस में डिजॉल्व हो रहा है, वाटर में. दैट इज वाई वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड NaCl इज अ सोल्यूट. हैव अ एग्जांपल, लेमन जूस इन वाटर. अगर हम लेमन जूस वाटर में बनाते हैं तो वहाँ पर लेमन जूस क्या होता है, सोल्यूट होता है, वाटर सॉल्वेंट होता है. NaCl in water, it is, these are the example of the solution. Further, let's discuss the concentration of acids and bases. Acids और bases का concentration क्या होता है? First of all, concentration, the proportion of a solute in a solution. The proportion of a solute in a solution is called the concentration of the solute in the solution. So अब हम यहाँ पर देखिए कि concentration कहते किसको है.
जो जितना अमाउंट सोल्यूट का सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूट इन दी सॉल्यूशन। मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है। तो सॉल्यूट का प्रोपोर्शन जितना ज़्यादा रहेगा उतना कॉन्सेंट्रेटेड वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा। तो दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन दी सॉल्यूशन, प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन दी सॉल्यूट। All the properties of solution depend on the nature of solute and solvent and also on the proportion of the solute in the solution. अब यहाँ पर जो properties of the solution होगी वो depend होगी किस टाइप का नेचर ऑफ द सोल्यूट है और सॉल्वेंट का नेचर किस तरीके से है, और देयर प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन मीन्स कितना सोल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट होगा। अगर लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। अगर मैक्सिमम अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट हुआ सॉल्वेंट में, हमेशा सोल्यूट सॉल्वेंट से कम अमाउंट में रहेगा। लेकिन अगर सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट है फिर भी, तो वो सॉल्यूशन को हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, फर्दर concentrated solution, when the concentration of a solute in its solution is high, it is a concentrated solution. concentrated solution वो solution होगा जब amount of solute क्या रहेगा, high रहेगा। amount of solute in the solution will be high, then this solution is called as concentrated solution. dilute solution, when the concentration of solute in its solution is low, जब लो अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर हियर: concentration, the proportion of solute present in the solution, on the concentration, the properties of solution depends on the nature of solute and solvent and proportion of solute, while the concentrated solution, when the amount of solute is high in the solution, it is called as concentrated solution, and dilute solution, when the amount of solute is present in the solution is low, it is called as dilute solution. Further, let's have a discuss about the units of concentration of solutions. कॉन्सेंट्रेशंस की यूनिट क्या है, कौन सा सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके लिए कौन सी यूनिट यूज़ होती है, वो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर सेवरल यूनिट्स। द फर्स्ट यूनिट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन, which is written as grams per liter, which is written as this and pronounced as a grams per liter. So यहाँ पर क्या है, mass of the solute, mass means weight of the solute. Okay, how much mass of the solute in grams है ना, ग्राम में, अगर 5 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम लाइक दिस। तो मास ऑफ द सोल्यूट, यानी कि जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया था, सोडियम क्लोराइड का हम वहाँ पर वेट लेंगे, कितना ग्राम है, 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, तो उतने ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, द यूनिट इज दैट ग्राम्स पर लीटर। ओके, सो द यूनिट इज नथिंग बट अ मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितने ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व है उस पर डिपेंड करता है, और उसको ऐसे लिखते हैं ग्राम्स पर लीटर। फर्दर, this is also called as molarity of the solution, which is indicated by capital M, molarity. So what is the molarity of the solution? The number of moles of the solute, dissolved in 1 liter of the solution. In the chapter 4 we will discuss about the moles later. So moles is nothing but a quantity. So number of moles of the solute,
सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ वाटर इज नथिंग बट 18 ग्राम ऑफ वाटर. 1 मोल ऑफ वाटर दैट इज H2O मॉलिक्यूल. 18 ग्राम ऑफ वाटर अगर हम लेते हैं तो वो 1 मोल कहलाता है. ठीक है. सो दैट इज द मोल इज अ डिफरेंट थिंग. यहाँ पर हम उसको एज ए क्वांटिटी करते लेते हैं. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. 1 लीटर में कितने मोल सोल्यूट के डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड एज मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन. The molarity of a solute is indicated by writing its molecular formula. अब molarity of solute कैसे इंडिकेटेड करते हैं? By the writing its molecular formula inside a square bracket. Look at the example. Here sodium chloride is written in the inside the square bracket which is equals to 1. What does it means? It means the molarity of this solution of common salt is 1 m, that is 1 molar. If 1 molar that is equals to NaCl into the square bracket is equals to 1. That is the way of writing the molarity of the solution. So common salt is the 1 molar, that is 1 m, that is 1 molar solution of common salt. Further, there are several other units of concentration of solution, but these two are widely used. So यहाँ पर हमने 2 यूनिट देखे, दैट इज द ग्राम्स पर लीटर. ओके. एंड द सेकेंड वन इज द मोलारिटी. ओके. सो दीज आर द 2 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. अंडरस्टूड? ओके. सो दिस इज द format of table. This table is already given in your textbook, where these blank spaces are given in the table also. So we have to find out these blue boxes. We have to find out the values come into these blue boxes. So we will discuss this now. Further, let's have an introduction to the table, that is solute. Here is the quantity of the solute, volume of the solution, and the concentration of the solution. So we have to find out the concentration of the solution. How we will find out? One example is already solved over there, that is name of the compound, that is sodium chloride. Molecular formula NaCl. Molecular mass. So how we will find out the molecular mass? When we look at the sodium having the molecular mass of 23, while this chlorine having the molecular mass of the 35.5. So 35.5 plus 23, that is 58.5 unit. Okay. Further, these all are A, B, C. Okay. Further, the quantity of solute having 2 columns here. D, that is gram. How much gram of NaCl is required? Here 117 gram. Quantity of solute to prepare 2 liter of solution. 2 लीटर सोल्यूशन अगर बनाना है तो 117 ग्राम ऑफ हमको क्या लगेगा? क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड लगेगा, और उसका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो 2 रहेगा, दैट इज़ 2 मोल. ओके. सो यहाँ पर मोल हमको कैलकुलेट कैसे करना है? E इज इक्वल्स टू D अपॉन C. D क्या है? ग्राम, वेट इन ग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, एंड C क्या है? मॉलिक्यूलर मास है. इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमको जो आंसर मिलेगा दैट इज़ द मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूट. Then volume of the solution, it is volume is referred into the liter here. Then gram per liter, that is the first unit we had discussed the concentration, about the concentration. gram per liter, कितने ग्राम सोल्यूट है 1 लीटर में. ओके. तो हियर 1 लीटर में यहाँ पर कितना है? 58.5 ग्राम पर लीटर. 2 लीटर में कितना होगा? 117 ग्राम, डबल इसका. ओके. तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? G इज इक्वल्स टू मीन्स ग्राम्स पर लीटर इज इक्वल्स टू D अपॉन F. व्हाट इज D हियर? ग्राम ऑफ वेट इन ग्राम ऑफ द सोल्यूट, एंड F दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. तो वेट इन ग्राम डिवाइड बाय क्या करेंगे हम यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन करेंगे. तो वी कैन फाइंड आउट द ग्राम्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. इन द लास्ट वन H, दैट इज मोलर. हियर मोलारिटी
मोल्स पर लीटर, मोलारिटी किस में, मोलारिटी मोल्स पर लीटर. सो H इज इक्वल्स टू E अपॉन, ये कैसे फाइंड आउट करना है, E अपॉन F. व्हाट इज E, मोल्स. सो विल पुट E हियर, देन F इज द quantity of the volume of the solution here. So let's find out these blue boxes here. First of all, the name is hydrogen chloride, that is hydrochloric acid is there. So now we have to find out the C. यहाँ पर हमको molecular mass पता नहीं है इसका, हमको calculate करना है. So let's have calculate the molecular mass of hydrogen chloride here. So आप लोगों को easy पड़ेगा कि molecular mass किस तरीके से निकाला जाता है. Have a look at this. Molecular mass of HCl. Mass of hydrogen is 1, okay, and mass of the chlorine is 35.5. So हमको HCl का मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये 35.5 प्लस ये 1, ये दोनों के मास को क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, और सम का जो भी आंसर आएगा वो क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. तो अब इन दोनों का 35.5 plus 1, that is 36.5. So look at here, molecular mass of the HCl, molecular mass of the HCl is nothing but a 36.5 unit. Okay, its unit is indicated as a U. Further we have to find out the D. How we will find out the D here? D is already given here, 3.65, sorry, it is already given here. So weight in quantity of solute, weight in gram of solute is already given, that is 3.65. ये already हमको 3.65 ग्राम दिया हुआ है. मतलब solute कितना है यहाँ पर, NH हमने HCl कितना लेंगे यहाँ पर हम 3.65 ग्राम. Okay, now we have to find out the E, that is moles of the solute. अब solute के मोल कितने हैं, ठीक है, जैसे कि इसके 2 मोल ऑफ सोल्यूट था, तो यहाँ पर मोल्स हमको फाइंड आउट करना है कि कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पर बनेगा. सो E इज इक्वल्स टू D अपॉन C. D ऑलरेडी हमारे पास है 3.65 एंड C इज ऑल्सो ओवर देयर 36.5. ये हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया है, 36.5 और 3.65. सो E इज इक्वल्स टू, D का वैल्यू यहाँ पर 3.65 है अपॉन C का वैल्यू 36.5 है. सो इस कैलकुलेशन के हिसाब से E इज इक्वल्स टू 0.1 मोल. तो ये जो सॉल्यूशन होगा, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, ये 0.1 मोलर सॉल्यूशन होगा. कितना होगा, 0.1 मोलर सॉल्यूशन. नाउ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम इज ऑलरेडी गिवन ओवर देयर. कितना सॉल्यूशन होगा, 1 लीटर. सो रिमेंबर दिस थिंग, 3.65 ग्राम 1 लीटर में हमने क्या किया, HCl को ऐड किया है. फर्दर नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ग्राम्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. अब ग्राम्स पर लीटर हम कैसे निकालते हैं, G इज इक्वल्स टू D अपॉन F. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट G हियर. सो G इज इक्वल्स टू D अपॉन F. व्हाट इज D हियर, मोल्स ऑफ द सोल्यूट, that is 0.1. and what is F? F is nothing but a 1 liter. So G is equals to, put the value of D here. D का वैल्यू 3.65 है, that is 3.65 divide by 1. So G is equals to 3.65 grams per liter. So here will be the value will be, so value will be 3.65 ग्राम्स पर लीटर. मतलब 1 लीटर में 3.65 ग्राम ऑफ HCl हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे. जब हमको कितना बनेगा, 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनेगा. 0.1 मोल यानी कि ये जो होता है 3.65, ये कितना है, 0.1 मोल है HCl का. सॉरी. नाउ कम टू द लास्ट बॉक्स, दैट इज मोलैरिटी. Now we have to calculate how much molar that is the concentration. ग्राम्स पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन क्या आया, 3.65 ग्राम पर लीटर. 1 लीटर में 3.65 ग्राम हम क्या करेंगे, HCl ऐड करेंगे. नाउ द सेकंड यूनिट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, हाउ मोलर दैट सॉल्यूशन इज, कितने मोल का सॉल्यूशन है वो. सो फार्मूला इज H इज इक्वल्स टू E अपॉन F. सो H इज इक्वल्स टू E अपॉन F. E का वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.1 है.
एफ का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है. सो वी कैन डायरेक्टली से दैट एच इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ. सो एच 0.1 upon 1, that is why H is equals to 0.1 molar. So molarity of the given solution, that is hydrogen chloride, when hydrogen chloride is added into the 1 liter 3.65 gram HCl is added into the 1 liter, then the concentration of the solution is 0.1 molar. Okay, further on the next box, name of the compound is sodium hydroxide. NaOH is the molecular formula. We have to find out the molecular mass. How will we find out the molecular mass here? Here, molecular mass of NaOH, that is sodium having the mass of 23, while mass of the oxygen is 16. ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है. सो ये सारे क्या, इन सारों का क्या करेंगे हम, सम करेंगे. 16 प्लस 23, हाउ मच इट इज़ 39, एंड हाइड्रोजन इज 1, सो इट इज़ 40. सो आंसर विल बी 40 हियर, 40 यूनिट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट D here. We have to find out D here. How will we find out the D here? Now 1 mole of NaOH is equals to 40 ग्राम. अगर 1 मोल NaOH का हम लेंगे तो वो कितने ग्राम आएगा, 40 ग्राम. ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया है 1.5 मोल, यानी कि 1.5 यानी कि अब ये एक मोल कितना था, 40 ग्राम था. ठीक है, तो 1.5 मोल कितना होगा, 60 ग्राम. सो वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट दैट इज 60 ग्राम ऑफ द सोल्यूट, यानी कि 1.5 मोल ऑफ द NaOH इज नथिंग बट 60 ग्राम. 60 ग्राम अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो वो 1.5 मोल होता है. ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर मास जो थे ये 1 मोल की वैल्यूज़ है, सारी क्या है 1 मोल की वैल्यूज़ है. तो यहाँ पर 1.5 मोल आ गया. अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज़ ऑलरेडी गिवन, दैट इज़ 2 लीटर. 2 लीटर सॉल्यूशन हमको प्रिपेयर करना है. 2 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड 60 ग्राम है. तो दिस 60 ग्राम इज एडेड इनटू द 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दिस 60 ग्राम इज इक्वल्स टू 1.5 मोल. मोल में अगर हम इसको कंसिडर करें तो 1.5 मोल होता है. ठीक है, नाउ द यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वी हैव टू फाइंड आउट हियर. कॉन्सेंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन का, 2 यूनिट्स में हम इसको फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ ग्राम्स पर लीटर में एंड देन मोलैरिटी में. सो ग्राम्स पर लीटर में अगर हमको फाइंड आउट करना है तो वी हैव द फार्मूला G इज इक्वल्स टू D अपॉन F. D क्या है हमारा, D इज़ नथिंग बट अ ग्राम ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट, क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट, दैट इज 60 ग्राम. सो वी विल पुट 60 हियर. ओके, हैव अ लुक एट दिस. G इज इक्वल्स टू D अपॉन F, दैट इज G इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 2. अभी 2 किसका वैल्यू है, F का, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज़ 2 लीटर. सो 60 अपॉन 2, दैट इज़ वाई G इज इक्वल्स टू 30 ग्राम्स पर लीटर. सो यहाँ पर ग्राम्स पर लीटर का वैल्यू क्या आया हमारा, 30 ग्राम्स पर लीटर. हैव अ लुक एट दिस, 30 ग्राम्स पर लीटर. नाउ we have to calculate the molarity of this solution, that is moles per liter, कितने मोल कितने लीटर में. ओके, सो यहाँ पर जनरली हम लोग देख सकते हैं कि 2 लीटर में 1.5 मोल है, तो 1 लीटर में कितने आएंगे, 0.75. सो लेट्स हैव द कैलकुलेशन ऑफ दिस. E अपॉन F, कॉलम E, दैट इज़ 1.5 डिवाइड बाय कॉलम F, दैट इज़ 2. So H is equals to 1.5 upon 2. So answer will be 0.75 molar. So the molarity of this solution is 0.75 mole. So this is how we can find out the values here. Remember this calculation. Okay. Now move to the next topic, that is the pH of the solution. The pH of the solution. pH stands for potential of hydrogen और power of hydrogen, दोनों भी बोल सकते हो उसको. ठीक है,
Have a look at what is the pH. Here pH, power of hydrogen or potential of hydrogen, it is called as power of hydrogen or potential of hydrogen. So pH is a scale used to specify how acidic or basic a solution is at 25 डिग्री सेल्सियस. मीन्स pH स्केल एक टाइप का स्केल होता है. इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई हाउ एसिडिक और बेसिक अ सॉल्यूशन इज़ एट 25 डिग्री सेल्सियस. मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये मैंडेटरी नहीं है ये टेम्परेचर, इट कैन बी डन ऑन दी अनदर टेम्परेचर्स ऑल्सो, बट स्टैंडर्ड ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम उसको स्पेसिफाई करें तो सब्सटेंस एसिडिक कितना है और बेसिक कितना है ये हमको अगर देखना है तो हमको पीएच स्केल यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. सो पीएच क्या रहता है? इट इज़ द स्केल यूज टू स्पेसिफाई हाउ एसिडिक और बेसिक अ सॉल्यूशन इज एट 25 डिग्री सेल्सियस. फर्दर, acids and bases dissociate to smaller or larger extent on dissolving in water, forming H plus and OH minus ions respectively. अब एसिड्स और बेसिस जैसे हमने देखे कि कुछ एसिड्स जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कुछ बेसिस कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, जिनको हम वीक एसिड्स कहते हैं. वीक बेसिस भी कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते. तो उसमें जो है ये सारे जो सब्सटेंस होते हैं एसिड्स और बेसिस, कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस है, कुछ वीक बेसिस है, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, कुछ वीक एसिड्स है. तो अब हर सब्सटेंस का एक अपना पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है कि वो कितना टाइप में, कितना वो डिसोसिएट होगा वाटर के अंदर. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा उतना, एसिड अगर डिसोसिएट होगा तो उतने ज़्यादा H प्लस आयन वो प्रोड्यूस करेगा. और कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने H प्लस आयंस भी होंगे. लेकिन और सेम टू दी बेसिस अगर स्ट्रॉन्ग मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे तो उतने OH माइनस आयंस वो प्रोड्यूस करेगा. लेकिन ये सारी चीज़ें डिसाइडेड नहीं है, ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन के ऊपर वो किस टाइप का एसिड है. मतलब हर एसिड की पीएच रेंज एक जैसी नहीं होगी, हर बेस की पीएच रेंज एक जैसी नहीं होगी. तो ये कम ज़्यादा H प्लस और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करने की वजह से वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है वहाँ पर. तो वो स्पेसिफाई होते हैं कि ये इतना एसिडिक है, ये इतना एसिडिक है, ये इतना बेसिक है, इतना बेसिक है. और कुछ न्यूट्रल है जो H प्लस भी नहीं बना रहा है, OH माइनस आयन भी नहीं बना रहा है, तो वो इट बिकम्स न्यूट्रल. वाई? ओके. सो H प्लस एंड OH माइनस आयन्स आर फाउंड इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन. जैसे कि मैंने बताया कि ऑल द जो एक्वेस सॉल्यूशन जो भी बनेगा उसके अंदर किसी का एक्वेस सॉल्यूशन में, जैसे कि HCl के एक्वेस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस का H प्लस आयंस अलग होंगे, वाइल H2SO4 को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो उसके H प्लस आयंस अलग प्रोपोर्शन में होंगे. मतलब H प्लस और OH माइनस आयंस की जो है वैल्यूज़ जो होती है वो डिफरेंट होती है ना. अगर हम काउंटिंग करें तो वो अलग अलग नंबर्स आएंगे. सो एंड ये जो H प्लस OH माइनस आयंस है ये डिसाइड करते हैं प्रॉपर्टी, एसिडिक है या बेसिक है, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, ये डिसाइड करते हैं. सो ये सारी काउंटिंग जो होती है इसको कहते हैं पीएच. फॉर एग्जांपल, द प्रोपोर्शन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस डिवाइड्स सॉइल इनटू द एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक टाइप ऑफ द सॉइल. देखो जो सॉइल्स होती है वो कुछ एसिडिक सॉइल होती है, कुछ न्यूट्रल होती है, कुछ बेसिक होती है. तो ये किस पे डिपेंड करता है कि उनके कॉन्सेंट्रेशन, उनका जो प्रोपोर्शन है H प्लस आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो वो क्या होगी, एसिडिक होगी. मतलब जो सॉइल H प्लस आयन ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी वो एसिडिक होंगी, वाइल द अदर विच कैन नॉट प्रोड्यूस H प्लस आइदर OH माइनस आयंस, वो OH माइनस भी नहीं और H प्लस आयंस भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रल. एंड बेसिक विच कैन प्रोड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयंस. तो यहाँ पर क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ तीनों की एक ही सॉइल है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक. व्हाई इट इज़ नीडेड? इट इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड, सेल सैप एक्सेट्रा टू हैव H प्लस OH माइनस आयंस इन सर्टन डिफाइनेड प्रोपोर्शन फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग. अब हमारी बॉडीज़ में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितनी भी फंक्शनिंग होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है,
तो ये सारे इनके अंदर ये डिपेंड करता है कि पीएच जो होता है वो पर्टिकुलर एक स्केल में मेंटेन होना चाहिए, यानी कि H प्लस आयन कितने प्रोड्यूस होने चाहिए, OH माइनस आयन कितने प्रोड्यूस होने चाहिए, ये उसके ऊपर सर्टन प्रोपोर्शन में होना ज़रूरी है. इट इज़ कंपल्सरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस organisms body organs. Okay. So chemical and biochemical process also required pH within the limit. pH जो है एक लिमिट में, एक लिमिट तक या तो एक्सटेंड होना चाहिए या तो कम होना चाहिए. ये डिपेंड करता है किस टाइप का बायोकेमिकल और केमिकल रिएक्शन है. सो दिस इज नथिंग बट अ पीएच. पीएच इज नथिंग बट अ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन, and it is nothing but a scale used to specify how acidic or basic solution is. मतलब कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है. जैसा कि हमने देखा स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारी बॉडी के ऊपर गिरता है तो हमको अगर हमारे बॉडी पे गिरता है तो वो क्या कर देगा, बर्न कर देगा उसको, है ना, जला देगा. लेकिन अगर उसी एसिड का हमको पीएच पता हो तो हम उसको हैंडल कैसा करेंगे, केयर करके उसको हैंडल करेंगे. सो दैट इज़ द डिफरेंस एंड दैट इज़ वाई द पीएच स्केल इज़ इंट्रोड्यूस्ड. फर्दर वाटर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस की गई है, दैट इज़ ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. जैसे कि आयोनाइजेशन हमने देखा कि जो आयनिक मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स डिसोसिएट होते हैं, मतलब उसका आयोनाइजेशन होता है, उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव आयंस फॉर्म हो जाते हैं. वैसे सिमिलर ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर होता है. ठीक है, ये कैसे होता है, हैव अ लुक एट दिस. व्हाट इज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर? व्हेन अ प्योर वाटर undergoes self ionization to produce H3O plus and OH minus ions is called as auto ionization of water. अब वाटर जो होता है वो H3O प्लस और OH माइनस आयंस, अब ये आयंस तो प्रोड्यूस करता है लेकिन बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में, बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में ये आयंस वहाँ पर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. अब ये कैसे होता है, हैव अ लुक एट दिस. H2O डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई और सब्सटेंस नहीं है, ये सिर्फ वाटर है. वाटर में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, सेल्फ वो क्या होता है H प्लस और OH माइनस आयंस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. मतलब यहाँ पर दो टाइप के पॉजिटिव और निगेटिव आयंस फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, इसके लिए वो पता नहीं चलता. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर हियर. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू अंडरगो डिसोसिएशन, there exist both H plus and OH minus ions in any aqueous solution. However, their concentration may be different. अब concentration उसका क्या हो सकता है, different हो सकता है. So this is the property of water, auto ionization of water. So यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस हो रहा है. इट मीन्स दैट कि वाटर का भी कोई ना कोई pH होगा. ओके, so let's further discuss the concentration of H plus ions formed by the dissociation of water at 25 degrees Celsius is 1 into 10 raised to minus 7. अब देखो यहाँ पर क्या है, the concentration of H plus ions. अब H plus जैसा कि ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर हमने देखे, उसमें जो डिसोसिएशन होता है वाटर में, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा. सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कितने H प्लस आयन फॉर्म करेंगे बाय डिसोसिएशन ऑफ वाटर. वाटर अगर डिसोसिएट होता है तो वो कितने H प्लस आयन फॉर्म करेगा एट 25 डिग्री सेल्सियस. तो वो उसका नंबर क्या होगा, 1 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 7. यानी कि ये बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में है ना. और ये मोल्स पर लीटर क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है. तो H प्लस आयन जब वाटर डिसोसिएट होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस तो कितने H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, 1 इंटू 10 रेस टू दी पावर माइनस 7 पावर है, यानी कि 0.00000 ऐसा 70 देन 1. ओके, तो इतने स्मॉल अमाउंट में वो क्या प्रोड्यूस करता है,
सॉरी इतने स्मॉल अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करता है वो H प्लस आयंस, यानी कि डिसोसिएशन है लेकिन बहुत ही थोड़ा है, ठीक है। सो 10⁻⁷ हियर, सो दैट इज़ वाई, मतलब वाटर का जो pH होता है वो 7 होता है। फर्दर वी विल डिस्कस दैट। नाउ एट द सेम टेम्परेचर, अब देखो सेम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले रहे हैं हम। एट द सेम टेम्परेचर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl इज 1 × 10⁻�0, यानी कि 1। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें, इफ यू लुक एट दिस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन अगर हम HCl का लेते हैं तो उसके अंदर कितने H प्लस आयंस प्रोड्यूस होंगे? 1 × 10, ओके, 1 × 10⁻�0, मतलब 1 मोल में 1 × 10⁻�0 H प्लस आयन क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे, किस में? HCl में। सो दैट इज़ वाई HCl का pH कितना होगा? इट इज़ नियर अबाउट 0 0 से ज़्यादा ही होता है लेकिन नियर अबाउट 0। फर्दर in 1 molar sodium hydroxide solution the concentration of H plus ions is, अब देखो यहाँ पर ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना है उसका? 1 × 10⁻⁻14। देखो यहाँ पर पावर क्या है? -14 मोल्स पर लीटर। ये कॉन्सेंट्रेशन है तो किसका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मतलब 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगर हमने लिए तो उसके अंदर H प्लस आयन कितने प्रोड्यूस हो गए? 1 × 10⁻⁻14 मोल पर लीटर। दैट इज़ वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH जो होता है वो नियर अबाउट 14 होता है, ठीक है। In common aqueous solution, the range of H plus ion concentration is very wide from 10⁻�0 to 10⁻⁻14। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सारे एक्वस सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो या तो 10⁻�0 से लेकर के 10⁻⁻14 ये इसकी रेंज हो गई, ठीक है। सो इसी रेंज को क्या कहा गया है? pH स्केल कहा गया, ओके। नाउ द pH scale, power of hydrogen. pH scale is introduced by the Danish scientist Sorensen. सोरेनसेन ने इस pH scale को इंट्रोड्यूस किया था। In 1909 he introduced new scale of expressing H plus ion concentration. इसने एक स्केल इंट्रोड्यूस किया था जिसमें H plus ion concentration हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Now this scale is very useful in chemical and biochemical process. As we know, the concentration of H plus and OH minus ion is important in the both chemical and biochemical processes. So the pH scale extends from 0 to 14. Okay, have a look at the pH scale here. This is the pH scale. On the node of 7, those are neutral. जितने भी सब्सटेंस न्यूट्रल होंगे उनका pH अबाउट 7 रहेगा। तो अबाउट 7 जितने भी सब्सटेंस रहेंगे जिनका pH अबाउट 7 आएगा तो वो एज ए न्यूट्रल काउंट होंगे। वाइल 7 से अगर हम 6 से लेकर के 0 to 6 अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये एसिडिक इन नेचर, यानी कि जितना इस साइड पे हम बढ़ते जाएंगे उतना एसिड क्या होता जाएगा? स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर ये वीक एसिड रहेगा 6 पे, 5 पे उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, 4 पे उससे स्ट्रॉन्ग, फिर ऐसी स्ट्रॉन्ग होकर के 0 पे एकदम जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, ठीक है। वाइल द बेसिस आर ऑन द राइट हैंड साइड, बेसिस स्टार्ट फ्रॉम द 8, 9, 10, 11, 12 to 14। और बेस जो है रहेगा यहाँ पर ये वीक बेस, फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड दी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ओके, तो ये pH स्केल है 0 to 14, इसके ऊपर नंबर्स है। 7 जो रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा, मतलब जैसे कि वाटर का pH जनरली 7 होता है तो वो
एज ए न्यूट्रल काउंट होता है, ठीक है। और 0 to 6 क्या रहेगा, एसिड रहेगा, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका पीएच 0 से 6 के बीच में आया तो वो क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। और ऐसा सब्सटेंस जिसका पीएच 8 से लेकर के 14 तक, 14 के बीच में कहीं पर भी आया तो वो क्या रहेगा, अल्कलाइन, यानी कि वो बेसिक इन नेचर रहेगा, वो बेस रहेगा। ओके, तो हम इस तरीके से पीएच स्केल से फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस बेसिक है, कितना बेसिक है, एसिडिक है, कितना एसिडिक है, या तो फिर न्यूट्रल है। फर्दर, सो अकॉर्डिंग टू द पीएच स्केल, प्योर वाटर हैज़ द पीएच ऑफ 7। प्योर वाटर जो होता है उसका पीएच 7 होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। सो इट मीन्स प्योर वाटर हैज़ H+। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो पर्टिकुलर जो वाटर का 1 मोल में कितने होते हैं, H+ आयन 1 × 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन वाटर में कितना रहेगा, 1 × 10⁻⁷। दैट इज़ वाई इट इज़ अ pH of 7. pH 7 indicates a neutral solution. न्यूट्रल सॉल्यूशन, जिसका भी pH 7 आएगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। pH 7 is the mid point of the scale. As we seen, it is the mid point because pH scale is 0 to 14. Now the pH of an acidic solution is less than 7. Less than 7 जो भी रहेगा वो acid count होगा, है ना, less than 7 acids. And the pH of the basic solution is greater than 7, मतलब 7 रहा तो वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। 7 से ज़्यादा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, मोर देन 7 बेसिक रहेगा, और बिलो देन 7 एसिडिक रहेगा। ओके, फर्दर pH ऑफ सम कॉमन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये टेबल जो है आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स 1 MHCl, pH होता है 0 गैस्ट्रिक जूस pH होता है 1। लुक एट हियर, यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल जो है रेन मिल्क जिसका एग्जांपल है 7, प्योर वाटर शुगर सॉल्यूशन। तो ये सारे इस साइड में क्या हो गए, सारे एसिड्स हो गए, और इसके इस साइड में सारे बेसिस हो गए। ओके, you can see that this table in your textbook also. Okay, this is the pH range starting from 0 to 14। जैसा कि मैंने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो होता है वो 14 होता है, और HCl का कितना होता है, 0 होता है। विनेगर जो हम लोग सिरका यूज़ करते हैं उसका pH होता है 3, ठीक है। रेन और मिल्क का 6.5 होता है। हमारे ब्लड बॉडी में जो ब्लड होता है उसका pH 7.4 होता है। बेकिंग सोडा का जो होता है वो 8.5 होता है। टूथपेस्ट का 9.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 10.5 होता है। लाइम वाटर जो होता है उसका pH जो होता है वो 11.0 होता है। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द सम कॉमन एक्वस सॉल्यूशन विद देयर pH। ओके, नाउ फर्दर come to the next point, that is universal indicators. Last time we had discussed about the litmus papers. लिटमस पेपर से क्या था, हमको पता चलता था कि पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस है, पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस है। लेकिन हमको यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता चलेगा कि कितना वो एसिडिक है या कितना बेसिक है। जैसे कि हमने पीएच रेंज देखी ना अभी 0 to 14, अब 0 से लेके 7 तक, सॉरी बिलो 7 जितने भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, एसिडिक रहेंगे। तो अब हमको लिटमस पेपर तो ये शो करता है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन हमको उसकी रेंज नहीं शो करेगा कि वो कितना एसिडिक है, उसका पीएच कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अब ये जानने के लिए कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस का पीएच कितना है, तो कुछ इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं जिनको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर? A universal indicator is a collectively mixture of a indicator। अलग अलग इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। इंडिकेटर मतलब शो करने वाला, ठीक है। इंडिकेटर्स विच शो अ कलर चेंज इन अ सॉल्यूशन, जो अगर हम सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो वो कलर चेंज शो करता है। जैसे कि लिटमस पेपर ने दिया था, लिटमस जैसे कि ब्लू लिटमस क्या होता है, रेड हो जाता है एसिड में, ठीक है, और रेड लिटमस ब्लू हो जाता है बेसिस में। तो ये जो चेंज है, सिमिलर चेंज यहाँ पर भी होगा, लेकिन कलर जो होंगे पे वो उसके इंडिकेटर्स के अलग अलग होंगे। विच इंटरप्रेट्स हाउ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इज़। अब हमने लिटमस पेपर यूज़ किया है
पहचानने के लिए कि एसिड है या बेस है। अब कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है ये जानने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, फर्दर a universal indicator can be in a paper form or present in a form of a solution। अब ये बोथ फॉर्म में है, सॉल्यूशंस भी होते हैं इसके यूनिवर्सल इंडिकेटर के और पेपर फॉर्म में भी होता है। A universal indicator shows different color at different values of pH। मतलब जिस हिसाब से pH रहेगा उस हिसाब से वो हमको क्या करेगा, कलर शो करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट कलर यानी कि 0 अगर pH 0 है तो कलर डिफरेंट रहेगा, 0.5 है तो डिफरेंट रहेगा, 0.1 है तो डिफरेंट रहेगा, ऐसे उसके अंदर डिफरेंस रहेगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। फर्दर the main component, what is the components of the universal indicator? Few components are listed here. The main components of the universal indicator in the form of solutions are, देखो उसमें क्या क्या होता है, थाइमोल ब्लू, मिथिल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू एंड फिनोप्थैलिन। So these are the general indicators which are present in the universal indicators. So remember these things. Further, universal pH indicators and pH meter. Have a look at this. This is the pH strip indicating the numbers over there, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So these are the colors of that solution. When we dip this solution, this अगर हम ये स्ट्रिप में से एक एज ए लिटमस पेपर जैसे कि हम उसको डीप करते हैं सॉल्यूशन में, तो ये इस टाइप में से कोई भी पर्टिकुलर कलर शो करेगा और उस हिसाब से हम उस इंडिकेटर से उसका क्या पता कर सकते हैं, पीएच पता कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिप फॉर्म में है। दिस इज आल्सो स्ट्रिप फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसमें हम कलर को मैच कर सकते हैं कि येलो है, डार्क येलो है, ऑरेंज है, रेड है, इधर ग्रीन है, किस टाइप का शेड हमको मिला है उस टाइप में हम लोग वहाँ पर स्ट्रिप रख सकते हैं और देख सकते हैं कि पर्टिकुलर पीएच उसका कितना है। ओके, एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर्म। ये सॉल्यूशन फॉर्म है। सॉल्यूशन फॉर्म में हम लोग अगर सॉल्यूशन में हमारे पास पर्टिकुलर कलर फॉर्म होता है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कलर से वो मैच कर रहा है और उसका फिर उस हिसाब से उसका पीएच होता है। एंड फाइनली the pH meter. This is the electronic device in which the electrodes are deep in the solution. Solution में electrodes को deep किया जाता है और यहाँ पर एक डिजिटल उसका क्या होता है, एक रीडिंग आता है। तो ये वेरी एक्यूरेट अगर हमको pH अगर पता करना है तो pH मीटर यूज़ होता है। वाइल हम लेबोरेटरी में ये सारे इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमको अगर उसका जनरली पीएच पता करना हो तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर। लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैड डिस्कस्ड टुडे, दैट इज़ द अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, बेसिसिटी, एसिडिटी, then universal indicator and the pH of the solution, very important. So remember these points. Now here we stop the video. On the next lecture we will discuss about the neutralization and the reaction of acids and bases. Okay, jazakallah.